Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum one class. How are you? Students, today we will discuss the topic the words. It means we will read the words which show the use of the sounds. But firstly, you will mention the date and day and class work like June 16, 2020 Tuesday, and also you will mention the classwork. Come to the topic. Read the statement. Read and match the words. So we'll read the words which are having the "der" sound. Okay, come to the first word, drill. Students, you can see this is a machine, and mostly we will use this machine to create a hole in wall. Okay, the word is drill. Okay, the next word, drum. You can see the picture of drum. And the third one is drop. Drop of water. पानी का कतरा. Besides these three words, we have a number of words which are having their "der" sounds like draft, drift, dress, drew, drink, drank, drunk, dream, draw, drip, drop, dry, drive, drag, drug, drain and drawn. बेटा हमने वर्ड्स तो डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि बेटा ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका जो नीचे दिए गए वर्ड्स होते हैं ये आपने अंडरलाइन कर लेने हैं. ठीक है, ये थ्री वर्ड्स आपने अंडरलाइन कर लेने हैं और थ्री वर्ड्स जो है वो नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं उनमें से आपने चूज़ करके 6 वर्ड्स या आप 5 वर्ड्स, ठीक है, 2 भी और 3 भी, जितने आप इजी कर सकें, 5 और 6 कि आपने लाजमी जो है वो पहले इसको लर्न कर लेना है और बाद में उसकी रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेनी है. लाइक प्रीवियस लेक्चर्स, now we move to our first activity. In this activity, students, you will match the same word to the word. Like draft is matched to the same word draft. Next, drag. Drag, this word will match the word drag is to the same word drag with the help of scale. Like, okay, both the blocks having same structure. Come to the next activity. This is a very interesting activity. In this activity, students, you will make and write the words. Firstly, you will make the words, then you will write the word one by one on the given blanks. Like the first word is der, the word became dress, so you will write the word dress. Like twice you will write the word dress. In this way, drum, the word became drum, drum, so you will write the word drum twice here. Like drum, drum, dream, dream, drawn, drawn, drill, drill, drag, drag, drain, drain. Okay students, come to the last activity. Write the missing words. बेटा ये बहुत मज़े की एक्टिविटी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में फर्स्टली आपने स्टेटमेंट्स को जो है वो रीड कर लेना है. ठीक है, थॉरली आपने स्टेटमेंट को रीड करना है. देन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास
5 वर्ड्स हैं और 5 ही सेंटेंसेस हैं। आपने जब रीड करना है तो कोशिश करनी है कि हर वर्ड्स को इमेजिन करना है आपने फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, जैसे हम अब प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आपको सूटेबल लगता हो और जो आपकी सेंटेंस की जो सेंस है वो ठीक बन रही है, तो आपने वही वाला जो वर्ड है उसमें आपने राइट कर देना है, ठीक है। ओके, अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। शी वांट्स टू डैश ऑरेंज जूस। शी वांट्स टू डैश ऑरेंज जूस। वो चाहती है ऑरेंज जूस। अब हम इन वर्ड्स में से एक वर्ड चूज़ करेंगे। फर्स्ट वर्ड है ड्रिंक, सेकंड ड्राई, थर्ड ड्रेस, देन ड्रॉप एंड ड्रम। अगेन वी विल read the statement, she wants to dash orange juice। वो चाहती है ऑरेंज जूस। ड्रिंक, पीना। Obviously we will write the word drink here to make a proper sense of the sentence. Similarly, the next sentence, this is Hafsa's dash, dry, dress, drop, drum। दिस इज़ हफ्सास ड्रेस। बेटा हम ड्रेस जो वर्ड है वो वहाँ हम फिलअप करेंगे, बिकॉज दिस इज़ हफ्सास ड्रेस, ये हफ्सा का ड्रेस है। तो एक प्रॉपर सेंस आ रही है तो हम ड्रेस राइट करेंगे। ओके, कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, दीज क्लॉथ्स आर डैश। ये कपड़े हैं। ड्राई, ड्रॉप, ड्रम। ड्राई, हम यहाँ ड्राई राइट करेंगे, बिकॉज फिर सेंटेंस जो बन जाएगा, ये कपड़े ड्राई हैं, ठीक है, खुश्क हैं, तो हम क्या राइट करेंगे, ड्राई। सिमिलरली अब कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट, अब्दुल्ला इज़ बीटिंग द डैश। अब्दुल्ला इज़ बीटिंग द डैश, ड्रम, ड्रॉप। Obviously we will write the word drum. Abdullah is beating the drum. Okay, come to the last sentence, did you drop this wrapper on the floor। इस स्टेटमेंट में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने ये रैपर जो है फर्श पे गिराया है, आपने गिराया है। इसका मीन है ड्रॉप, ठीक है। डिड यू ड्रॉप दिस रैपर ऑन द फ्लोर। तो बेटा ड्रॉप यहाँ जो वर्ड है वो बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है। मैंने आपको इसका ट्रांसलेट भी करके बता दी उर्दू में। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू विल राइट द डेट 17 जून 2020, देन क्लास वर्क एंड द डे Wednesday। ओके, रीड द स्टेटमेंट, रीड एंड मैच full words। रीड एंड मैच full words। Okay, come to the first word, flag। The first word is flag। You can see the flag of Pakistan, so the word is flag। Second word, flute। Second word is flute and the third one is flame। बेटा इन ऑब्जेक्ट्स को गौर से देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है फ्लैग, ठीक है। फ्लैग का मतलब होता है झंडा, ठीक है। यहाँ आपने इस जो पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है बेटा, ये पाकिस्तान का झंडा, इसको हम फ्लैग बोलते हैं इंग्लिश में। और देन फ्लूट, फ्लूट आपने देखी होगी, बांसुरी, ठीक है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ठीक है। और ये फ्लेम, आपने कैंडल के जो ये एरो आप नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये कैंडल का फ्लेम है, उसके ऊपर जो है वो एरो के साथ इंडिकेट किया गया है फ्लेम को, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं फ्लेम। जो आग थोड़ी सी ऊपर शोला जल रहा होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेम। कम टू दी फर्दर वर्ड्स, फ्लू, फ्लैट, फ्लैप, फ्लैश, फ्लाइट, फ्लिप, फ्लॉट, फ्लॉक, फ्लो, फ्लूट, फ्लॉट। Come to the first activity. In this activity, students, you will match the same words. Like the word flag is matched to the same word flag, then you will match the word flat is to the same word flat,
with the help of scale. Both the blocks having same structure. Come to the next activity. Make and write words. Firstly, students, you will make the word, then you will write the word one by one here twice. For example, the first word will be flag. The word became flag. Then students, you will write the word flag here twice. Okay. Come to the next word. Firstly, we will make the word at flat. So we will write the word flat here twice. Then the word will flap. The word became flag. So we will write the word flap twice here, like flat, flat, flap, flap, then flash, flash, float, float, flock, flock, flute and flute. Come to the next activity. This is very interesting activity. Firstly, we'll read the statement carefully. Then we will fill up with the these given words. Now we will read the first statement. Her dash is at 2 o'clock. Her dash is 2 o'clock. Her flight is 2 o'clock. We will choose the word flight, then we will write the word here to make proper sense of the sentence. Like her flight is at 2 o'clock. उसकी जो flight है वो 2 o'clock है. Flight 2 o'clock पर है. ठीक है बेटा. Come to the second statement. I live in a flat. I live in a flat. Students, you will choose the word flat from here. Then you will write the word flat. So the sentence became I live in a flat. मैं flat पे रहता हूँ. Come to the third statement. She gave me a bunch of flowers. She gave me, या उसने मुझे दिया, a bunch of flowers, एक फूलों का bunch, एक फूलों का गुलदस्ता. Okay बेटा. Come to the fourth statement. I can see a flock of birds. I can see, मैं देख सकता हूँ, a flock of birds. birds आपको पता है बेटा परिंदों को कहते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है बेटा. I can see a flock of birds. मैं birds का एक झुरमुट, एक ग्रुप देख सकता हूँ. flock का मीन ये होता है बेटा, इजी वर्ड्स में आपको मैं बताऊँ, आपने जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, उनको बेटा ग्रुप्स की सूरत में आपने देखा होगा फ्लाई करते हुए. ठीक है. बहुत से बर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे होकर जब फ्लाई करते हैं तो वो हम उसे फ्लॉक कहते हैं. ठीक हो गया. तो हम वर्ड ऐड करेंगे फ्लॉक. Come to the last statement. There is a dash in my soup. There is a fly in my soup. फ्लाई बेटा आपको पता है मक्खी को कहते हैं, तो इधर इसका सेंटेंस होगा मेरे सूप में जो है वो मक्खी है. ठीक है बेटा. कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक. रीड एंड मैच वर्ड्स. It means students will read the words which are having the first sound. Like the first subject you can see frame, frame, frame. The next word is frog and the third one is fruit. फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे बेटा आए, ये एक फ्रेम. ठीक है. आपको पता होगा आपके घर में भी फ्रेम होगा. इसमें बेटा हम फ़ोटोज़ को फिक्स करते हैं और अपने रूम में, ड्राइंग रूम्स वगैरह में इसको रखते हैं. ठीक है बेटा. आपने देखा होगा फ्रेम. ठीक है. ये वो ऑब्जेक्ट है. और ये छोटा सा एनिमल होता है फ्रॉग. ठीक है. ये आपको पता है कि जब रेन होती है या मोस्टली पूल वगैरह में आप इस एनिमल को देखते होंगे, फ्रॉग, मेंढक.
और ये थर्ड जो वर्ड है बेटा ये फ्रूट्स है। ठीक है, आपने इन तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है और देन मैं आपको फर्दर जो वर्ड्स है वो पढ़ाती हूँ। तो आपने उनमें से 2 और 3 वर्ड्स जो हैं जो आपको इजी लगे आपने उनको भी लर्न कर लेना है और उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है रफ नोटबुक पे। कम टू द नेक्स्ट वर्ड्स, फ्री, फ्रीज, फ्रेश, frisk, from, front, prawn, fry and frog. Come to the first activity. In this activity students you will match the same words, like the frame is matched to the same word frame, then you will match the word freeze to the same word free with the help of scale. Then our next activity, make and write words. Like previous activity students, you will also firstly make the word, then you will write the word one by one, like frame. The word became frame. So the next word will be free, then freeze, fresh, frisk, frog, frog, front, frost and prawn. Come to the last activity. Students, read this statement, write the missing words. Here you can see the given words. So we will fill up these blanks with the help of given words. Come to the first statement. This is a photo dash. Now we'll choose a suitable word for this word, like for this statement. Sorry, this is a photo frame. Come to the next sentence, buy 2 get 1 free. Buy 2 get 1 free. बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका मतलब है दिस इज अ फोटो फ्रेम। ये एक फ़ोटो फ्रेम है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपने देखा कि वो आपको फ्रेम दिखाया गया है, ये देखें। ठीक है बेटा, ये फ्रेम है तो वो स्टेटमेंट में भी इसका जो है वो जिक्र आ गया, दिस इज़ अ फोटो फ्रेम, ये एक फ़ोटो फ्रेम है। ओके, सो वी रोट द वर्ड फ्रेम। ओके बेटा, सेकंड वाला जो था वो था बाय 2, 2 ख़रीदे गेट 1 फ्री। तो एक चीज़ जो है वो फ्री आपने यूजुअली देखा होगा जो मार्केट्स में सेल लगती हैं, तो उसमें यही कहा जाता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री। इसका बेटा मतलब होता है कि हम जो 2 ऑब्जेक्ट्स 2 थिंग्स जो है वो परचेज़ करेंगे तो हमें 1 जो है वो फ्री दी जाएगी। ठीक है, कम टू द थर्ड सेंटेंस, आई एम डैश फ्रॉम कराची। आई एम फ्रॉम कराची, आई एम डैश कराची, आई एम फ्रॉम कराची। इसका बेटा मीन हुआ कि मैं कराची से हूँ। ओके, कम टू दी नेक्स्ट स्टेटमेंट, कैन यू स्पीक फ्रेंच। कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हैं फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज होती है बेटा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप फ्रेंच जो है वो बोल सकते हैं। कम टू द लास्ट स्टेटमेंट, शी लाइक्स टू ईट फ्रूट। शी लाइक्स, वो पसंद करती है। शी बेटा लड़की के लिए, वुमेन के लिए यूज़ होता है। अगर ही होता तो हम कहते वो पसंद करता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे शी लाइक्स, वो पसंद करती है टू ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाना। शी लाइक्स टू ईट फ्रूट, वो फ्रूट खाना पसंद करती है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ read and match girl words, but firstly you will mention the date and day and class word, then come to the topic, read and match girl words. You can see 3 objects with words. The first word is glue, second word is glove and the third one is globe. फर्स्टली बेटा ये आपको ग्लू दिखाई गई है इस पिक्चर में। ये आपको पता है बेटा ये चीज़ों को पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो पिक्चर्स होती हैं उनको हम फिक्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये ग्लव, ठीक है बेटा, ये यूजुअली
हम जो है वो विंटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ग्लव आपको पता है, सबको पता होगा ग्लव का। और ये है ग्लोब। बेटा ये पूरी वर्ल्ड का जो है वो मैप इसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं ग्लोब। कम टू दी फर्दर वर्ड्स। दिस वर्ड इज ग्लाइड, क्ली, ग्लो, glad, glad, glance, claim, claim, gloom, glitter, and the last one is class. Okay. In the first activity, you know students, you will write the same word, like the word glad is matched to the word glad. Similarly, you will solve these two blocks. Come to the next activity. In this activity, student, firstly you will make the word, then you will write like girl and glad. The word became glad, so you will write the word glad twice here. So next word will be girl and glance. Girl glance. So we wrote the word glance, glance, globe, gloom, glow. Come to the last activity. Write the missing words. Students, firstly we'll read the statement, then we'll fill up the blanks with the help of given words. फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई कैन सी द होल वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। ऑन दिस ग्लोब, मैं इस ग्लोब पे पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। सो विल चूज द वर्ड ग्लोब। सेकेंड स्टेटमेंट, आई ड्रिंक वाटर इन अ ग्लास। मैं गिलास में पानी पीता हूँ, ठीक है बेटा। आई एम डैश टुडे टू सी यू। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। टू सी यू, आपको देखकर। बेटा ग्लैड का मीन होता है खुश होना, ठीक है। यू फील हैप्पी, ठीक है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। टू सी यू, आपको देखकर। सेकेंड स्टेटमेंट, यूज डैश टू पेस्ट द पिक्चर। यूज ग्लू। ग्लू को यूज़ करें टू पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए दिस पिक्चर। बेटा आपको जैसे पता है कि ग्लू जो है वो चीज़ों को फिक्स करने के लिए और पिक्चर्स को पेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। कम टू द लास्ट स्टेटमेंट, वी यूज़ ग्लिटर। हम ग्लिटर को यूज़ करते हैं टू शाइन थिंग्स, चीज़ों को शाइन देने के लिए, ठीक है बेटा। चीज़ों में ग्लो लाने के लिए हम ग्लिटर का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं बेटा डायरी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि अब से जो है वो जो भी लेक्चर आपका आएगा साथ में आपको डायरी दी जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए क्लियरली कि हमें नेक्स्ट जो है वो हमें क्या वर्ड जो है हमने करना है, ठीक है बेटा। तो ट्यूसडे को आपका लेक्चर आ जाएगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह। तो आपने ऐसे करना है कि उस दिन ट्यूसडे को आपने पेज नंबर 33 और 34 आपने लर्न भी कर लेना है और राइट भी कर लेना है। जैसे मैंने आपको वर्ड्स भी बताया कि 5 वर्ड्स जो है वो आपने लर्न करके और राइट कर लेनी है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके बेटा, वेंसडे को आपने पेज 35 टू 36 ये 2 पेजेस आपने लर्न भी करने हैं, राइट भी वर्ड्स करने हैं, और जो आपको मज़ीद एक्सरसाइजेस उसमें दी गई हैं तो आपने सभी सॉल्व कर लेनी है, वो नीट एंड क्लीन। ओके, थर्सडे को बेटा 37 और 38 पेज है, लर्न प्लस राइट। ओके, फ्राइडे को 39 पेज टू 40 ये जो पेजेस हैं आपने इनकी लर्न एंड रिटर्न दोनों प्रैक्टिस आपने कर लेनी है और आपका जो वर्क है वो नीट होना चाहिए। सैटरडे यू विल रिवाइज ऑल डिस्क्रिप्शंस। सैटरडे बेटा स्पोकन का डे है, तो आपने ऐसे करना है कि रिवीजन करनी है।
संडे को ऑफ है, तो आपने मंडे को रिवीजन करनी है सारी जो आपका मतलब कि पूरे वीक का पेज नंबर 33 से 40 तक। ठीक है बेटा, ये 8 पेजेस हो गए। आपने इन सबको रिवाइज कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है बेटा, एक जो है वो दोबारा से इसको एक नज़र देख लेना आपने कि कुछ भी अगर मिस हो जाए तो फिर आपने अच्छे से इसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेनी है।